we were solving examples using Gauss elimination. So solve the system by using Gauss elimination. That was the last example. So exact solution is given, so you can compare with the exact solution. So let's quickly revise. So what we have done, so we firstly write coefficient matrix, which is 6 2 to first row and right hand side, second equation, second row, and third equation, third row. And there is a restriction that you need to use 4-digit rounding. If you write number like this, P by Q, this is exact. But computer always write number in decimal form. So in computer or machine, you will write this number as 0.66 depending on limit. So if you are using 4-digit rounding, then you will write 2 by 3 as सर 0.667. आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर क्रोम शेयर हो रखा है सर अभी. Okay. हाँ जी सर. So firstly, write system in matrix form. This is first row, second row, third row. And in this example, we have a restriction that write number in decimal form, 4-digit. So 2 by 3 will be 0.667 in 4-digit. And if you solve the example like we did previous, पिछला example किया था ना, so we did not write number in decimal form. So you got exact solution. But ऐसा नहीं होगा, so due to rounding or chopping, you will get error. तो डेसिमल में लिखा हमने. सो विद द हेल्प ऑफ दिस, फर्स्ट इसको देखना है. विद द हेल्प ऑफ 6 मेक 0 बिलो. सो फर्स्ट राइट मल्टीप्लायर. 2 डिलीट करना है तो 2 by 6 कर दो. 1 डिलीट करना है तो 1 by 6. फिर जो मल्टीप्लायर है 0.33 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो से और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दो. सेकंड रो को रिप्लेस करना है. और थर्ड कैसे रिप्लेस करना है? थर्ड का ओरिजिनल एंट्री माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट. ये ट्रांसफॉर्मेशन है. सो सेकंड विल बी सेकंड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट एंड थर्ड इज आल्सो थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट. सो दिस इज न्यू मैट्रिक्स. First will remain same and here you will fill 0. Okay, so again now go on diagonal. So with the help of this 0.001 make 0 below. So again write multiplier according to this position, which is third row second column M32. जिसको डिलीट करना है डिवाइड बाय जिससे डिलीट करना है. ठीक है. So finally you got a very big number. So now replace. So this is first, this is second, this is third. So third will be third minus multiplier times second. Okay, so now equivalent system, first two same, थर्ड की एंट्री हमने लिखी हुई है, यहाँ पे 0 है and so on. So now you have system in upper triangular form. तो लास्ट इक्वेशन को देखना है आपने. लास्ट, तो लास्ट क्या देगा आपको? This is the coefficient of x3. So 5 5 5 4x 4 times 5 x3 equal to minus 27790. So from third equation we got 5.9 555 x3 equal to minus 27790. Solve for x3. 4 डिजिट में लिखना है, माइनस लगभग पॉइंट इतना ही आएगा. ठीक है. फिर सेकंड लिखना है आपने. सेकंड 0.301 x2 minus 0.3333 x3. x3 you got now 0.5 multiply कर लो and equals to 1.667. Do calculation systematically. First multiply these two. Write 4 digit rounding, then subtract in right hand side, then divide with 0.001. अब करना x2 0 है. So these two guys will become same. सर चेंज कैसे हुआ? हैं?
सर पहले तो 5.9 आ रहा था x3 और नहीं x2 वो तो हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन लिखा है ना। अब ये तो हम कंप्यूट कर रहे हैं ना कितना आ रहा है, जो आएगा वही लिखेंगे ना। अच्छा अभी हम एग्जैक्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, एग्जैक्ट मैंने देखो क्वेश्चन में एग्जैक्ट मैंने लिखा है। अगर आप मैटलैब से करोगे बाय राइटिंग लाइक 10 डिजिट लिखो यस लॉन्ग सर यस। फॉर्मेट में, तो आपको ये आंसर मिलेगा लॉन्ग फॉर्मेट में। बट वी आर यूजिंग 4 डिजिट राउंडिंग, सो ड्यू टू राउंडिंग एरर विल कम। तो जो हमारा आंसर आ रहा है हम तो वो लिख रहे हैं, हमारा आंसर 0 आ रहा है 4 डिजिट में। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन थी ठीक है 6x1 प्लस 2x2, तो x2 तो 0 है, प्लस 2x3 इक्वल्स टू -2। सो यहाँ से x1 निकालो, दैट इज 1.335। So if you compare with the given solution, so you can check x3 seems little bit correct. This is wrong. This is also wrong. Okay, so what conclusion we make over solution? So due to rounding in 4 digits, we get incorrect solution. अब करेक्ट करने का वे है, हाउ यू कैन करेक्ट द सॉल्यूशन। सो देयर आर 2 ways. फर्स्ट है इधर यूज लॉन्ग फॉर्मेट और you write numbers in p by q form। बट ये सिर्फ आप मैन्युअली कर सकते हो, यू कैनॉट राइट, यू कैनॉट डू विद कंप्यूटर। ठीक है, आप इवन आप कैलकुलेटर में भी नंबर लिखोगे 2/3 तो वो सिंप्लीफाई कर देगा। सो वो तो हम अपने बाई हैंड आप कर सकते हो। इधर यूज लॉन्ग फॉर्मेट दैट वी डोंट। सो सेकंड है कि यूज पार्शियल पिवटिंग, use partial pivoting with same number of digits, with same number of digits। so अब लॉन्ग फॉर्मेट है, ये आप लैब वगैरह में करोगे आप, सो दैट इज योर लैब वर्क। एंड वी विल यूज हियर पार्शियल पिवटिंग। डिजिट उतने रखने हैं। अब पार्शियल में हम बैक जाएंगे प्रॉब्लम, वी विल सी प्रॉब्लम अगेन। सो एट द फर्स्ट स्टेज आई विल स्टार्ट हियर। सो यहाँ तक तो सेम है, सो यू एलिमिनेट। ठीक है, फर्स्टली आपने देखना है, जब पार्शियल शिफ्टिंग करना है तो आपने फर्स्ट कॉलम देखना है पहले। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 6। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड में अगर -6 होता देन इट इज आल्सो रिलेटिवली बिगर। सबसे बड़ा देखना है, यहाँ ऑटोमेटिकली 6 है तो सबसे बड़े से आप डिवाइड करो, वो हो ही रहा है नेचुरली। सो वी डोंट नीड सो वी डोंट डू एनीथिंग। सो फर्स्ट स्टेज इज ओके। फिर सेकंड स्टेज पे आ जाइए यहाँ पे आप। सो हियर okay, so here you got very small entry 0.301। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या देखना है? फर्स्ट ये डायगोनल से शुरू करना है, फर्स्ट कॉलम। एट सेकंड स्टेज आपने इन दोनों एंट्री को देखना है। ठीक है, तो आपने डिवाइड करना है बिगर से। अब यहाँ पे ये बहुत स्मॉल है, सो स्वैप E2 with E3 एंड वी विल सी दैट दिस विल इंप्रूव योर आंसर। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है वो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा होना चाहिए। सो इन दोनों को कंपेयर कर लो, सबसे बड़ा कौन सा है? 1.667। सो इन पार्शियल पिवटिंग वी विल रिप्लेस इक्वेशन सेकंड विद थर्ड। तो इनको दोनों को स्वैप कर दो, फिर हम दोबारा से एलिमिनेट करेंगे एंड देन वी विल कंप्यूट आंसर अगेन। ओके, सो पार्शियल पिवटिंग एट सेकंड स्टेज A22
मॉड ले रहा हूँ, मॉड अगर माइनस हो प्लस हो दैट डजंट मैटर, A22 इज वेरी स्मॉल, सो वी, अब इंटरचेंज को हम ऐसे लिखते हैं, सो वी इंटरचेंज E2 विद E3, ठीक है, चाहे आप लैंग्वेज लिख दो, सो वी विल इंटरचेंज E2 विद E3। सो दोबारा टेबल लिख लो आप, जस्ट राइट द टेबल अगेन, फर्स्ट रो नो चेंज, जो आपका थर्ड था वो अब सेकंड बन गया, 1.667 minus 1.333, 0.3334, and second 0.0001 minus 0.333, 1.667, ठीक है जी, और कुछ नहीं किया आपने, सो जस्ट यू रिप्लेस्ड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब आपने एलिमिनेट करना, इसको जीरो बनाना है 1.667 की हेल्प से, सो अगेन राइट मल्टीप्लायर M32 0.001 1.667, so this is, write it in 4-digit point, 123405999, first 4 non-zero digit you need to write, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, जो थर्ड है, नई थर्ड है, थर्ड को क्या लिखोगे, थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स सेकंड, so new matrix, same, first same, second is also same, 0.334, यहाँ 0 अगली एंट्री लिख दो, सो यहाँ पे क्या आएगा 0.0333 माइनस ऊपर इसको 0.599 इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले और माइनस कर दो, ये लगभग जीरो ही है, मेरे को लगता है कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लास्ट वाला डिजिट को करेगा ये -0.3332 और अगला तो सेम रहेगा 1.667, सो इट इज ऑलमोस्ट जीरो। अब फिर आप करो बैक सब्स्टिट्यूशन, यूज बैक सब्स्टिट्यूशन, okay, so third equation, so if you again write it in matrix form, you can write it in matrix form, जब दोबारा लिखोगे तो ये सिस्टम है, ये आपका जो रिड्यूस होके बना है 622 0 1.667 minus 1.333 0 0 minus 0.33, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, x1 x2 x3 and column this is right hand side -2 1.667, ओके। तो अब आप बैक सब्स्टिट्यूट करो, लास्ट वाला x3 का कोफिशिएंट है, सो 0.3332 x3 इक्वल्स टू 1.667, ठीक है, और x3 की वैल्यू सेकंड में फिट कर दो, यू गॉट x2 एंड फ्रॉम फर्स्ट यू गॉट x1, ओके। तो लिख लेते हैं, सो थर्ड इक्वेशन विल गिव यू -0.333 to x3 equals to 1.667, simplify it with calculator, x3 is -0.5003, from second equation 1.667 x2 minus 1.337 multiplied by x3 equals to 0.334, इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर वे में करना है, फर्स्टली इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 डिजिट लिखना है, इधर ले जाके माइनस करना है 4 डिजिट, देन डिवाइड विथ 1.667, डू कैलकुलेशन
every calculation with the 4 digit. So x2 is minus 3.801. From first equation, 6x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to minus 2. मैं बार बार कहता हूं इन कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है. लेट्स डू लास्ट वन. So this is 3.801 times 2, 7.602. Then next entry 5.003 times 2. 10.006. हाँ तो 4 में लिखना है तो क्या बनेगा? 10.00. 10.06 है तो 1 बन जाएगा ना ये. ठीक है सर, उससे पहले राउंडिंग एक कर बढ़ा रहे देते हैं ना. अब इन दोनों को ऐड करो. So minus 7.60 कितना बनेगा बताओ? 7.602 plus 10.01. So 17.612. अगर 2 आ रहा है so 4861 equal to minus 2. So 6x1 equals to minus 2 plus 17.61. So 17.61 minus 2. So this is 15.61. So x1 equals to 15.61 divided by 6. कितना आएगा? 2.602. 2.602. ठीक है. तो कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है. जैसे हम अभी यूजुअली स्टूडेंट गलती करते हैं. तो इसमें ये होगा कि अगर आपने एक भी एंट्री मान लो ये गलत कर दिया, आपका सारा आगे गलत है. सो एरर विल प्रोपेगेट थ्रू आउट. इफ यू मेक error in beginning so that everything will be incorrect. So do systematically. मान लो आपने ये लगा रहे हो तो आपने फर्स्ट एंट्री यहाँ से ये गलत कर दिया, तो आगे सारी कैलकुलेशन दैट एवरीथिंग विल बी रॉन्ग. सो यू वॉन्ट गेट मार्क्स. सो यू विल गेट मार्क्स अप टू दिस पॉइंट ओनली. ये सबसे बड़ी दिक्कत है न्यूमेरिकल एनालिसिस में. इजी है, आसान है, बहुत आसान है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस. So what we have done, so we have used only 4 digit same and now we get correct answer. अब correct कैसे कहोगे? You can compute relative error. अब अगर कंपैरिजन करना है आप करना, वो कैसे करोगे? x1 का जो ट्रू वैल्यू है जो आपने कंप्यूट किया है डिवाइड बाय ट्रू, इसको आप चाहे स्टार कह दो, कंप्यूटेड वैल्यू multiply with 100. So compute relative error. Same in x2. Compute relative error. Same in x3. Compare your solution with computed solution. ठीक है. जैसे आपने x1 को कंपेयर करना हो तो जो आंसर दे रखा है आपको that is minus 5.5.0 and you have computed 5.003 divided by minus 5 multiply by 100. तो इसको लिख लो आप एरर को जितना आएगा. ओके. सो कंपैरिजन मींस कंप्यूट एरर्स either absolute or you can compute relative error. Relative error से आपको अच्छा आइडिया मिलेगा. सो ट्राई टू कंप्यूट relative errors. ओके. Yes sir. Okay, so now we have taken 2 examples. So now I'll write general procedure. General procedure means that a pseudo code that you can write in MATLAB.
general procedure of Gauss elimination. So you have system of equations in which you have first equation a11 x1 plus a12 x2. Okay, so n क्रॉस n सिस्टम है आपके पास, जिसको हम लेबल लगा रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, एंड सो ऑन a21. मैटलैब में आप इसको ये लिख दोगे, a11 का मीनिंग है a11 फर्स्ट रो देन कॉलम, ठीक है, aij, a22 and a2n. This is my second equation, and I am also writing ith equation. That is important in writing program. So ith equation will be ai1 x1 plus ai2 x2, ठीक है, and so on ain, ith row equal to b of I, and last one will be an1 x1 plus an2 x2 plus ann xn equals to b of n. This is my nth equation. So we have n cross n system, n equation in n unknown. These ai's are coefficients, they are numbers 1 2 3 etc. Real number, they can be any number real. So ei डिनोट कर रहा है मेरा ith रो, ठीक है, और कॉलम eij, कॉलम ये है आपके फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन. ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रहेगा, सेकंड कॉलम है सेकंड इंडेक्स, सेकंड रहेगा. So what we do at first is, so firstly you write augmented matrix. So you give input matrix A with right hand side, जिसको हम augmented matrix बोलते हैं. So this is coefficient matrix plus right hand side and so on. Last equation an1, an2 and ann. Sorry, augmented. So and here b1, b2, bn. So firstly you start from this a11. If this a11 is non-zero, then we eliminate x1 from each row below x1. So each row e2, e3, en. So with the help of this guy, you make 0 below in first column, provided it is non-zero. So for this we write multiplier. What is multiplier? So mi1 लिखते हैं, जैसे a21 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, m21, ai1 के कॉरेस्पॉन्डिंग mi1 और an1 के अकॉर्डिंग an1, उसी जिसको डिलीट करना है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग वी राइट मल्टीप्लायर ए. तो हर एक रो के लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट एंट्री को ai1 को आप a11 से डिवाइड कर दोगे फॉर ईच रो बिलो. सो सेकंड, थर्ड एंड, यानी कि आप फर्स्ट इसको लोगे सब से a21 डिवाइड बाई a11, a31 डिवाइड बाई a11, यानी कि रो में वेरी करते जाओगे. कॉलम तो फर्स्ट रहना है ai1 और a11 फिक्स है, रो सेकंड में i2 होगा, थर्ड में 3 4, और मल्टीप्लायर का पोजीशन भी वही है जो इधर है, इसका पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा है इसको, ठीक है, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग जिसको डिलीट करना है. तो फिर आप ith रो को क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखोगे. सो वी राइट ei एज ei माइनस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट से और हर एक रो को माइनस करते जाओगे.
मतलब सेकंड को क्या लिखोगे, E2 माइनस M21 E1, और थर्ड को क्या लिखोगे, E3 माइनस M31 E1। फर्स्ट की हेल्प से, यानी कि फर्स्ट रो की हेल्प से आप नीचे सबको एंट्री को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, अब मैं बी को मैं सेपरेट लिख रहा हूं वैसे, अब क्योंकि हमें आगे ये काम भी आएगा, तो वैसे तो इसके अंदर ही है, बट मैं बी आई को सेपरेट भी लिख रहा हूं। और बी आई को हम लिखेंगे, सेम डी आई को करना है आपने, बी आई एज बी आई माइनस MI1 B1। मतलब ई किसको कह रहा हूं मैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, इनको, बी को मैं सेपरेट लिख रहा हूं, ये हमारे अगले मेथड में काम आएगा सेपरेट। चाहे आप इसके अंदर लिख दो, एक ही बात है, बट सेम चीज बी का करना है आपने। तो B2 क्या होगा, B2 माइनस M21 B1, B3 क्या होगा, B3 माइनस M31 B1, एंड सो ऑन। जो लेफ्ट में करना है वो ही राइट में करोगे। सो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल गेट 0 इन फर्स्ट कॉलम बिलो A11, ये सारे 0 बन जाएंगे। फिर आपने यहां पे आ जाना है डायगोनल पे A22 पे, सेम प्रोसेस को आपने रिपीट करते रहना है। ठीक है, A22 फिर A33 के बिलो डायगोनल पे जाना है, और बीच में कहीं ना हो 0 बन जाए, ये चेक करना है आपने। अगर 0 बने फिर आपने स्वैपिंग कर देनी है रो का, आपस में चेंज। Okay, so this will delete X1. So we repeat this procedure. तो मैं जर्नल लिख रहा हूं, जर्नल। We repeat this procedure for column 2, 3 up to n-1। हमने पीछे एग्जांपल सॉल्व किए थे 3 क्रॉस 3, तो 2 बार करते हो आप, है ना, 2 बार। तो अगर n क्रॉस n होगा तो n-1 टाइम, एक कम होगा। तो हर एक बार आपने चेक करना है ये चीज AJJ A11 A22 ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी राइट, आप ith रो को लिखोगे ith माइनस AIJ अपॉन AJJ EJ। सो दिस इज जनरल प्रोसीजर, और मैटलैब में भी आप यही लिखोगे। ऑफ कोर्स मैटलैब में लिखने का तरीका अलग होगा, जैसे EI का मीनिंग मैटलैब ये लिखोगे EIJ माइनस AIJ AJJ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सूडो कोड है, इस लाइन को आप मैटलैब में लिखोगे। सो यू विल चेंज एवरी रो विद दिस रूल, AI माइनस AIJ अपॉन AJJ AJ। और किसके लिए चेंज करना है, फॉर ईच, जैसे A11 है तो उससे अगले वाले चेंज होंगे ना। पहली स्टेज में क्या लिखोगे आप, A11 है तो चेंज कौन सी, फर्स्ट आपने ये सिलेक्ट किया, रो कौन सी चेंज हुई, अगली, सेकंड थर्ड सारी। सेकंड स्टेज में आप यहाँ पे जाओगे A22, तो रो कौन सी चेंज होगी, अगले वाली, उससे अगले वाली। तो यानी कि जो आपका आई वेरी करेगा, जेथ कॉलम है तो उससे अगला J+1 J+2 से लेके लास्ट तक n तक। सो दिस विल एलिमिनेट xi in each row below the ith value। So after that you got upper triangular matrix, resulting matrix is, अच्छा BI में लिखा था सेपरेट, BI का भी यहाँ ऐड कर दो। सो EI को, BI को भी ये सेम चीज लिखनी है, BI विल बी BI माइनस AIJ अपॉन AJJ मल्टीप्लाई बाई BJ।
सेम चीज आपने BI में करना है। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर, और उसका ये फॉर्म है, फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं है, A1 एंड B1, यहाँ पे 0 बन जाने हैं सारे। ये आपका जो यहाँ पे A22 न्यू आएगा, मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, ये सारे चेंज हो जाएंगे सारे, बट नोटेशन में मैं वही लिख रहा हूँ, सो दे आर न्यू। ठीक है, एंट्री चेंज होगी ना सारी, यहाँ जीरोस, लास्ट ANN बचेगा और यहाँ पे BN। तो ये कलर वाली, ग्रीन वाली, ये सारी एंट्री चेंज है, न्यू एंट्री है। फिर आप क्या करते हो, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हो। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन क्या क्या लिखते हो उसे, देन यू राइट ANN, जिसको आप बोलते हो बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन, x ANN XN इक्वल्स टू BN, तो XN आपका क्या आ जाएगा, BN अपॉन ANN। एक ऊपर वाला लिख लेते हैं, फिर हम जनरलाइज कर देंगे इसको, इससे ऊपर वाली रो बता सकते हो, ऊपर वाली रो पे क्या आएगा इसके ऊपर, जो n-1 रो है, एंट्री क्या सर होगी, AN-1 आ जाएगा। डायगोनल पे है ना, डायगोनल पे क्या होगा, रो तो AN-1 है, AN-1 कॉलम n-1 XN-1 है। अगली एंट्री AN-1 nth कॉलम XN इक्वल्स टू BN-1, ये आएगा। n-1 रो में पहला इंडेक्स n-1 है, कॉलम n-1 और nth। ठीक है, तो यहाँ से आप XN-1 कंप्यूट कर लो, इधर ले जाओ BN-1 AN-1 n XN मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो। सो इन जनरल, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ith रो? हम ith लिख देते हैं, और प्रोग्राम भी आप यही लिखोगे, मैटलैब में भी आपने यही लिखना है, एक ये बता देना है। अब XN मैटलैब कैसे लिखेगा, XN इक्वल टू BN डिवाइड बाई ANN, ये बता के लास्ट वाला, फिर आपने एक लूप लगा देना है। लूप कैसे लगाओगे, बैकवर्ड, n-1 से शुरू करके बैक जाना है। तो हम एक ith लिख देते हैं, सिमेट्री है इसमें। एक ith इक्वेशन क्या होगी, AII XI है ना, I में पहला I होगा। अब मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है, फर्स्ट में A11 से एंट्री है, आगे सारी हैं, सेकंड में A22 से आगे, कहीं पे जाके AII आएगा तो उससे अगले वाली एंट्री होंगी, पीछे सारे जीरो होंगे, है ना। तो AII XI, AI से अगली एंट्री क्या होगा, कॉलम I+1 XI+1, फिर उससे अगली AI+2 XI+2, एंडिंग किस पे होगी, AIN XN इक्वल्स टू B ऑफ I। तो जब I कंप्यूट करोगे, ये सारे पहले ही हम पता होंगे आपको, जैसे आपने X2 कंप्यूट किया, उससे अगले वाला आपको पता है X3, है ना। जब आपने X1 कंप्यूट किया तो उससे अगले वाले कौन से थे, 2 3, यू ऑलरेडी नो। तो I से अगले वाले सारे पता हैं आपको, है ना। तो इसको मैं सम फॉर्म में लिख रहा हूं, सम फॉर्म में कॉलम I+1 से लेके n तक वेरी करेंगे, AIJ XJ इक्वल्स टू B ऑफ I। व्हाट विल बी XI, टेक दिस सम राइट हैंड साइड, ठीक है, सारी एंट्री डाल दोगे इसमें और AII से डिवाइड कर दोगे। और I कैसे वेरी करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, n-1 n-2 अप टू 1। तो ये आपका, ये लाइन आप मैटलैब को बताओगे, बैक सब्स्टिट्यूशन में पहले आप ये बता दोगे, फिर एक लूप शुरू करोगे। लूप कैसे शुरू करोगे, I n-1 से लेके एक एक कम करते जाना है, 1 तक जाना है। इस लाइन को आप कोड कर दो, XI इक्वल्स टू BI
सम आपके टीचर ने बताया होगा कैसे लिखते हैं, कैसे लिखोगे सम? ये ए आई है ना, आई, जे वेरी कर रहा है तो मैटलैब में तो ऑप्शन है, यहाँ पे डाल दो i+1 : n, ये सारा सम कर देगा बस, डिवाइड बाई ए आई है। ये कॉलम लेगा एक बार i+1, तो ai+1, आई फिक्स रहेगा, i+2, i+3 एंड सो n तक करके सारी एंट्री को सम कर देगा, ये सम है। So you will decode this line to MATLAB. Okay, so write ith equation and then fit entry. So this is the pseudocode of Gauss elimination. Anything you want to ask? No, sir. No, sir. थ्योरी में तो कुछ नहीं पूछेंगे, इसमें प्रॉब्लम्स ही पूछते हैं। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट मेथड है। इसमें एरर आएगा, एरर सिर्फ राउंडिंग चॉपिंग से ही मिलेगा, और कोई एरर नहीं है। We don't have any initial guess, nothing. So if you apply this method properly, you will get correct answer. Of course, there will be error due to rounding and chopping only. बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, प्लस माइनस कर रहे हो, ये एलिमेंट्री आपने +2 वगैरह में पढ़ा होगा मेथड ये। So let us take one more example. For example, you have this system x1 minus x2 plus ax3. यही सर जान लो, ये तो नहीं पूछते ना पेपर में कि ith वाली जो अभी आपने बताई? जो वो आपका मैटलैब के लिए है वो, ठीक है? क्योंकि जब आप मैटलैब कोड लिखोगे तो आप इस वे में लिखोगे ना, नहीं? ठीक है सर। क्योंकि मैटलैब में तो आप 1 2 3 नहीं कह सकते ना, एग्जांपल लेके तो नहीं बताओगे। सो ith इक्वेशन बताओगे, सो मोटा मोटा आप मैटलैब में ये लिखोगे। सो यू राइट डिलीट एंट्री अकॉर्डिंग टू दिस रील, इनपुट दोगे पहले, फिर मल्टीप्लायर निकालोगे, फिर ये परफॉर्म करोगे, है ना? ये परफॉर्म यानी कि ये करोगे इन जनरल, ये वाला ये परफॉर्म करोगे, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक्शन निकालोगे, डायरेक्टली मिलेगा आपको, बाकी सारे आप लूप से निकालोगे। सो दिस इज ए सूडो कोड ऑफ गॉस एलिमिनेशन। हाँ, क्लास में आपको सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछेंगे जैसे ये इस टाइप का। तो नेक्स्ट क्विकली हम करते हैं। सो एक ए अननोन है इसमें, ठीक है? 3 ax1 plus x2 plus x3 equals to 2। तो क्वेश्चन है, सो फाइंड a, the values of a for which we have unique solution, no solution, or third, infinitely many solution। So we will do in same manner, we write augmented matrix. So what will be augmented matrix? 1 minus 1 a minus 1 2 minus a 1 2, right hand side -2 3 2. So this one, first one, this is non-zero. With the help of this one you delete below. तो मल्टीप्लायर लिखने हैं। फर्स्टली फॉर मल्टीप्लायर्स आर मल्टीप्लायर्स, पहला m21 है, -1/1 तो -1 ही आएगा। थर्ड m31 a डिवाइड बाई 1, दिस इज a। तो आप सेकंड इक्वेशन को आप लिखोगे, सेकंड -1 फर्स्ट, यानी कि 1 ही आ जाएगा, प्लस ये आपकी e1 है, ये e2 है, दिस इज e3। थर्ड को आप लिखोगे, थर्ड -a टाइम्स फर्स्ट। सो न्यू मैट्रिक्स, फर्स्ट रो सेम, सेकंड में यहाँ 0 बन जाएगा। आप लिखना एंट्री 2 -1 1, यहाँ पे 0 1,
यहाँ पे 0 1 प्लस a 1 minus a square, then 2 plus 2a. So this is new e1 e2 e3. अब डायगोनल पे आ जाओ, यहाँ पे इसकी हेल्प से बिलो वाले को 0 कर देना आपने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लिखोगे m32, सो m32 जो एंट्री डिलीट करना है दैट इज 1 प्लस a डिवाइड बाई 1 ही है। सो अब थर्ड को क्या लिखोगे, थर्ड विल बी थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स सेकंड। So new augmented matrix is first those same 0 1 0 1 0 0 1 minus a square 1 plus a. Now we discuss cases. अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास, so you got 1 minus a square x3 equals to 1 plus a. Okay. So if a equals to 1, तो क्या होगा, 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जीरो एक्स से इक्वल टू 2 पॉसिबल है, 0 इक्वल टू 2? नहीं सर, तो क्या करते, सिस्टम हैज नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सेकंड पॉसिबिलिटी, अब 1 माइनस ए का फैक्टर है, अगर ए माइनस 1 हो फिर क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस 1 हो तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये आएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। यस सर, यस सर। So 0x3 equals to 0. So what will happen? So we can take any x3. So we can take any x3. इसका मीनिंग क्या होगा, कुछ भी x3 लो आप, कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 10 लेगा, 100. So infinitely many solution. नहीं, बाकी आप उस पर डिपेंड करेगा, किसी ने x3 1 लिया तो x2 x1 कुछ और मिलेगा, किसी ने x3 100 लिया तो कुछ और मिलेगा। सो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर ये ना हो, दोनों हो ना, ऊपर वाले ना हो, ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, फिर क्या होगा, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, तो हम निकाल लेते हैं, x3 की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस ए x3, तो 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सो x3 विल बी 1 बाई 1 प्लस ए कैंसिल होगा, 1 माइनस ए। सेकंड में तो x2 इक्वल टू 1 है ही सीधा, x3 जी का ऑप्शन 0 है, सो x2 इक्वल टू 1। थर्ड से x1 निकालो, फर्स्ट से, अब करना कंप्यूट, ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए, and a not equal to 1, so you have unique solution. अच्छा, आपने मैथ तो सर रैंक से रिलेशन पढ़ा था इसका, हैं रैंक सर, इसमें भी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकता है। नहीं, मैंने कहा a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सर a की वैल्यू आप 2 डालोगे तो तीनों की अलग वैल्यू आएंगी, 3 हाँ डालोगे वो तो नहीं, वो तो वैल्यू फिक्स कर दी ना आपने, a2, वो तो a तो क्वेश्चन में दिया होगा ना आपको, तो ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना। सेकंड में देखो ना, a पे नहीं डिपेंड कर रहा ना, 0x3 इक्वल टू 0, सो नो डिपेंडेंसी ऑन a, ठीक है सर। सेकंड में, ठीक है, वो हमेशा ही ट्रू है, बट इसमें है ए पे डिपेंडेंट है, ए पे तो है ही, ए आपको लेटर से प्रॉब्लम में दिया होगा ये कुछ ना कुछ, ठीक है सर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, रैंक से रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में रैंक, पढ़ा तो था सर। अच्छा, तो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो, जो आपका थर्ड केस है, देन इन दैट केस यू गॉट यूनिक सॉल्यूशन। अब रैंक क्या है कि आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म लिखा है मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर,
तो यस सर, तो डायगोनल के बिलो 0 है, तो यानी कि हर एक रो एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है, और राइट हैंड साइड में भी उतनी एंट्री है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोबारा का बताना। रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल है, सो यू गॉट यूनिक सॉल्यूशन। सर दोबारा बताना एक बार। Rank of coefficient matrix equal to rank of augmented matrix for unique solution. I will add in next class. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। I'll write here before I forget. Okay, we will add in next lecture. Thank you, sir. Remark. थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. Okay. We don't have much time. I'll stop. You can bring your query in next class. Okay. ओके सर।